مسیح کے نام میں اسلام ہو. پلیز تشریف رکھیے. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ. سوئے میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے میکا کی کتاب اس کا 7واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح خدا نے ہمارے ساتھ بڑے اچھے لوگ ملائے ہیں جو بڑا اچھا گاتے ہیں بجاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان بیٹیوں کے لیے بھائیوں کے لیے جنہوں نے گایا بجایا ہے زوردار تعریف کر کر یہ بے شک خدا ہی کا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں مختلف توڑوں سے نواز رکھا اور جہاں جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے ہم اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آمین. سو میکا کی کتاب مل گئی آپ کو؟ مل گئی ہے؟ اوکے. 7واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے: اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوگا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے. جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے، وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا. تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا. میری آنکھیں اسے دیکھیں گی، وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پامال کیا جائے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. ہاللیلویا. آیت کلام کے لیے زوردار تعریف ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور bless you all. آپ میں سے کتنوں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی؟ میکا کی کتاب کا مطالعہ ویری گڈ. ایک بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. That's great. غالباً اس لفظ کا مطلب خدا کی مانند کون ہے؟ میکا. میکا کا مطلب، اور میکا نبی جو ہے یہ یسایہ نبی کا ہم اثر تھا. یسایہ نبی مشہور ہے، ایک ہی دور میں تھے یہ دونوں. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، زبردست باتیں ہیں. نور کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے، ہاں اندھیرے کی بات ہے، سیڈنس کی بات ہے، لیکن پھر اس کے بعد امید کی بات. غالباً اس کے یہ چھوٹی کتاب ہے، ہاں چیپٹر بھی ساتھ ہی ہیں اس کے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں ایک اور بڑی خاص بات جو ہمیں ملتی ہے 5ویں باب یسوع مسیح کے بارے میں نبوت. یسوع مسیح کے بارے میں جن کے ہاتھ میں بائبل ہے وہ دیکھیں ذرا. یہ میں آپ کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم اپنے حوالے پر آتے ہیں. 5ویں باب 2 آیت میں لکھا ہے: لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہوگا. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع. اور اگر آپ مقدس متی کی چیز کو دیکھیں 2 باب کی 6 آیت، تو یہی آیت یسوع مسیح نے کوٹ کی ہے. آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. متی 2:6 یہی حوالہ جو میں نے پڑھا ہے وہاں پر یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہو. اور پھر
इसी का 6वां बाब जरा निकालें, इसी किताब का, मीका की किताब 6:8, वहां पर ये किताब, इसकी ये जो आयत है 6:8, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। यहाँ पर लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फिरुतनी से चले। आमीन। ये आयत इस किताब की बड़ी अहम आयत, क्योंकि उस वक्त लोग जो थे बेइंसाफी से काम ले रहे थे, गुनाह जो था लोगों के अंदर था, और खुदा अपने खादिम के वसीले से कहता है कि खुदा तुझसे सिवा इसके क्या तवक्को करता है कि तू नेकी करे और इंसाफ से काम ले। खुदा ये चाहता है। और जो हवाला हमने पढ़ा है उसको उस पर आ जाए वापस। यहाँ पर इस्राइल की बहाली की बात हमने पढ़ी है। हाँ, उनके गुनाह का जिक्र हमने पढ़ा। अगर वो मुसीबत में है तो अपने गुनाह की वजह से, अपने गुनाह की वजह से। यहूदा का कबीला जिसके बारे में नबी ये बातें कर रहा, हमने यहाँ पर पढ़ा है 9वीं आयत में, हाँ मैं खुदा के कहर की बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया। तस्लीम कर रहा कि मैंने उसका गुनाह किया है और उसका गुनाह करने की वजह से मुसीबत में है, आजमाइश में है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हमने ऊपर पढ़ी है। पहली यानी 8वीं आयत में वो अपने दुश्मनों से मुखातिब है और कह रहा है कि मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा नूर है, और नूर कहाँ चमकता है? कितने चमकता? तारीकी। दिन के वक्त लाइट बाहर जला दे, यानी रोशनी, हाँ अंधेरे में रोशनी होगी। जब रात होती है तो नूर चमकता है। नूर यानी रोशनी जो है वो अंधेरे को दूर करती है, खत्म करती है। और मर्द खुदा अपनी कौम का गुनाह तस्लीम करते हुए कहता है कि हाँ, वो लोग जो मुझ पर शादमान होते हैं, खुशी मनाते इसलिए कि मैं शायद गिर गया हूं, इसलिए वो खुश हैं कि मैं पस्त हो गया हूं। हाँ, आई एम डाउन, मैं नीचे हूं, गिर गया हूं, लेकिन वो मुझ पर ज्यादा देर तक शादमान नहीं होंगे, क्योंकि हाँ, जब मैं गिरा हुआ होऊंगा या जब मैं गिरूंगा तो मेरा खुदा मुझे उठा खड़ा करेगा। जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो मेरा खुदा मेरे लिए नूर को मुहैया करेगा, बल्कि मेरा खुदा जब मैं तारीकी में होगा तो नूर की मानिंद चमकेगा और वहां से यदि तारीकी में से मुझे निकाल लेगा। जब मैं गिरा होऊंगा तो मेरा खुदा जो संभालता है, जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो उठाता है, मुझ पस्त पर, मुझ गिरे हुए पर रहम करेगा और मेरे हाथ को पकड़ेगा और मुझे उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो मेरे साथ है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे छुड़ाता है, वो मुझे बचाता है और वो मुझे तारीकी में से बाहर निकालता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरा दुश्मन ज्यादा देर तक मुझ पर शादमान ना होगा, मुझ पर खुशी नहीं मनाएगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मुझ गिरे हुए को उठाएगा और अंधेरे में मेरे लिए जो कि नूर है, नूर को वो उतरेगा और नूर को जारी करेगा और मुझे वहां से बाहर निकालेगा। आमीन। वो मुझे वहां से बाहर निकालेगा, वो मुझे बहाल करे, वो मुझे उठा खड़ा करेगा।
इंसाफ करने वाला खुदा है। और फिर आगे लिखा है वो मुझे रोशनी में लाए और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। सदाकत क्या है? सदाकत क्या है? सच्चाई। वो मुझे संभालेगा, वो मुझे तरीकी में से निकालेगा, वो रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा, मैं उसकी सच्चाई को देखूंगा, क्योंकि मेरा खुदा सच्चा है। हमारा खुदा सादिक है और सदाकत से और सच्चाई से भरा हुआ खुदा है। देखा, वो मुझे रोशनी में लाएगा। और वैसा में खवाला देखिए, मुकद्दस पतरस के खात्मे से बहुत मशहूर है। पहला पतरस उसकी 9वीं आयत, जल्दी से निकालो। मीका की किताब में हमने पढ़ा है कि जब मैं गिरूंगा तो मुझे संभालेगा, जब मैं तरीकी में बैठूंगा तो वो मेरा नूर होगा। और वहां पर फिर हमने पढ़ा है कि ना सिर्फ वो वहां से निकालेगा बल्कि मुझे रोशनी में लाएगा। निकाला है पहला पतरस 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही कायरों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है। और फिर आगे लिखा है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। इसने किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? मीका की किताब में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो किसमें लाएगा? किसमें लाएगा? आप चुप हैं। किसमें लाएगा? हवाले की समझ नहीं आई, हवाले की समझ नहीं आई, मैं क्या पढ़ रहा हूं समझ नहीं आई। मुझे बताएं, कहां से निकालेगा और कहां लाएगा? कहां से निकालेगा? तरीकी में से निकालेगा और कहां लाएगा? रोशनी में। तो पतरस क्या कह रहा है कि हाँ, उस खुदा ने हमें अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। थोड़ा सा ध्यान रखें, हमने वहां पर पढ़ा है कि जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे उठा खड़ा करेगा, जब मैं तरीकी में बैठूंगा तो वो मेरा नूर होगा, वो मुझे वहां से निकालेगा और रोशनी में लाएगा। और पतरस, मुकद्दस पतरस कह रहे कि खुदा ने हमें अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हाँ, पहले हम तरीकी में थे, कह रहे पहले हम तरीकी में थे, लेकिन अब खुदा ने हमें अपने फजल से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। उसने उन्हें अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, उसने हमें अपनी रोशनी में बुलाया है। जैसे मैंने कहा कि वहां पर वो मुसीबत में है, लेकिन उनकी मुसीबत का जो सबब है उनका गुनाह है। और इंसान गुनाह की वजह से तरीकी में होता है, इंसान गुनाह की वजह से तरीकी में होता है, इंसान अपनी नेगेटिव सोच और ख्यालात की वजह से तरीकी में होता है। लेकिन जब इंसान इकरार करता है, जब इंसान को महसूस होता है कि खुदा जो रहम से भरा हुआ, खुदा जो करम से भरा हुआ है, वो उस तारीकी को मिटाता है, वो उस तारीकी को खत्म करता है जिसमें हम गिरे होते हैं, जिसमें हम फंसे होते हैं, जिसमें हम गिर चुके होते हैं। खुदा अपने रहम और अपने फजल को जारी करके हमें वहां से निकालता है और अपनी अजीब रोशनी में लाता है। खुदा इंसान को रोशनी में देखना चाहता है, खुदा इंसान को रोशनी में लेकर आना चाहता है। रोशनी, नूर, खुदा खुद नूर है, लिखा वो नूर है। और फिर उसका बेटा मुकद्दस यूहन्ना कहता है यीशु के बारे में, यीशु खुद कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं। हाँ, दुनिया का नूर वो कहता है मैं हूं, जो मेरी पैरवी करता है, जो मेरे पीछे चलता है, वो तरीकी में नहीं रहेगा। जो कोई खुदा के पीछे चलता है, जिस किसी पर खुदा अपने रहम को जारी करता है, वो नूर में जिंदगी बसर करता है, वो नूर में रहता है, क्योंकि हमारा
वो नूर है। और जब कोई गिरा होता है तो वो उसे उठाता है, जब कोई तरीके में होता है तो वो उसे बाहर निकालता है, ना सिर्फ निकालता है बल्कि नूर में लेकर आता है, उसकी हालत को बदलता है। ये दो हालतें हैं ना, एक हालत तरीके की है, एक हालत जो है वो रोशनी की है, और एक हालत में से खुदा निकाल के दूसरी हालत में ले आता है। खुदा हालत को तब्दील करता है, खुदा हालत को बदल देता है। और फिर आगे ये क्या कहता है, जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं 10वीं आयत में कहता, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देख कर रुस्वा होगा, मेरी आंखें उसे देखेगी, वो गलियों की कीच की मानिंद पमाल किया जाएगा। आमीन। वो कह रहा है फिर जब खुदा मुझ गिरे हुए को उठा खड़ा करेगा, उनकी नजरों के सामने जो मुझ पर शादियाना बजाते हैं, जब मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा, उनके सामने जो मुझे देखते हैं कि मैं गिरा हुआ हूं, परेशान हूं, गरीब हूं, फंसा हुआ हूं, जो मुझे देखकर खुशी मनाते हैं, वो कहते हैं जब मेरा खुदा मुझे इस दुख में से निकालेगा, जब मेरा खुदा मुझे तरीकी में से निकालेगा, जब उनके सामने मेरा खुदा मुझे तरीकी में से निकाल के रोशनी में लाएगा, जब वो देखेंगे तो फिर वो ज्यादा देर तक ये ना कह सकेंगे, बल्कि वो बिल्कुल भी ये ना कहेंगे कि तेरा खुदा जिसके बारे में तू दावा करता है वो कहां है, बल्कि लिखा है कि वो ये देखकर रुस्वा होंगे, बेइज्जत होंगे। खुदा मेरी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करके उन्हें जवाब देगा, खुदा उनके मुंह को बंद कर देगा, और खुदा उन्हें रुस्वा कर देगा, और उनके मुंह को ताला लग जाएगा, और मैं अपने खुदा में सरफराजी पाऊंगा, और उनका हाल जो मुझ पर शादियाना बजाते थे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, बल्कि वो कहते हैं कि वो गली की कीच की मानिंद पमाल किए जाएंगे। गली की कीच, कचरा जिस पर से लोग गुजरते हैं, जो रोका जाता है, कहता उनकी हालत जो मुझ पर खुशी मनाते थे खुदा वैसी बना देगा। इसलिए मेरे अजीज, खुदा के कलाम के मुताबिक जो हवाला हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं कि हमारा खुदा जो है वो सदाकत से भरा हुआ है। हमारा खुदा, हम सीख रहे हैं कि इंसाफ करने वाला खुदा है। हम नबी की मार्फत सीख रहे हैं कि हमारा खुदा जो नूर है हमें परेशानियों की हालत में नहीं देख सकता। अगर हमारा ध्यान अपने खुदा की तरफ है, अगर हम अपने गलत कामों पर पछताते हैं, उससे माफी मांगते हैं, तो हमारा खुदा हमें माफ करके वहां से बाहर निकालता है। इसलिए मैं दिलेरी से कहूं, जैसे नबी कह रहे हैं कि जो मुझ पर शादियाना बजाते हैं, हाँ, मुझे देख करके मैं गिरा हुआ हूं, मुझे देख करके मैं अंधेरे में हूं, जो मुझ पर खुशी मनाते हैं, जो मुझ पर ताने कसते हैं, वही जब मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा, जब मेरा खुदा मुझे रिहाई देगा, छुटकारा देगा, तो वही शर्मिंदा होंगे, बल्कि उनकी हालत जो है मेरा खुदा बदतरीन बनाएगा। इसी तरह अगर मैं इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, अपने ऊपर एज अ चर्च, एज अ क्रिश्चियन, अगर हम इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा खुदा नूर है। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारे मुनज्जी यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया का नूर मैं हूं। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रिहाई देने वाला, हमारा निजात दहिंदा हमारे साथ है, और हमें यकीन होना चाहिए कि उसकी निगाह हम पर है।
हमें यकीन होना चाहिए कि उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अगर मैं पस्त हूं, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं मजबूर हूं, अगर मैं किसी भी ऐसी हालत का शिकार हूं, खा मैं खुद जिम्मेदार हूं, या वैसे ही मैं आजमाइश में हूं, बीमारी में हूं, शायद तारीकी में हूं, तो मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरा मसीह मेरे साथ है और वो मुझे तारीकी में से बाहर निकाल सकता है। जैसे पीटर के बारे में हमने पढ़ा, वो कहता है कि वो मैं अपनी रोशनी में लाया है। जैसे मीका कहता है कि ना सिर्फ उसे तारीकी में से निकाला है बल्कि वो रोशनी में लाएगा। कहता है वो रोशनी में लाएगा। एक बड़ी उम्मीद जो है वो अपने लोगों को देता है और हमें अपने खुदा में उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ, हमारा खुदा जो रोशनी है, हमारा खुदा जो नूर है, वो हमें भी नूर में लेकर आया है, लेकर आने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। इसलिए मैं किसी भी हालत में हूं, मैं नबी की तरह दलेरी कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरा खुदा मेरे साथ है। हाँ, मेरा खुदा मुझे तरीकी में से निकाल सकता है। और शायद यहां पर मैंने कहा ऐसा चर्च, शायद मेरा भी कोई दुश्मन हो। मेरे लिए तो हमारा दुश्मन इब्लीस है, लेकिन इंसान भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। शैतान तो है, इंसान भी जमीन पर ऐसा रोल अदा करते हैं। इसलिए अगर ऐसा है तो मैं खुदा के हुजूर प्रेयर करूं, दलेरी से कहूं कि शायद इस वक्त कोई ऐसा है जो मुझे बस देखकर, शायद कोई ऐसा है जो मुझे गिरे हुए को देखकर मुझ पर खुशी मनाता है, लेकिन हाँ, वो दिन वो वक्त आएगा कि मेरा खुदा जो है वो मुझे पकड़ लेगा, संभाल लेगा, थाम लेगा और उठा खड़ा करेगा। और जिस तरीके के अंदर मैं गिरा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, जिस परेशानी का मैं शिकार हूँ, मेरा खुदा मुझे निकालेगा और मेरे दुश्मन को जो मुझ पर शादमान है, खुशी मनाता है, मेरा खुदा उसे जवाब देगा और अपना जलाल जाहिर करके, मुझे ब्लेस करके, मुझे बरकत देके, मुझे बढ़ाकर उसे शर्मिंदा करेगा। मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। इसलिए अगर मैं दुश्मन इब्लीस क्या तो सैड हूं, परेशान हूं, तो मैं दलेरी से कहूं कि नो, मेरा खुदा है जो नूर है, ये मुझ पर कब तक शादियाना बचाएगा, ये मुझ पर कब तक शादमान होगा। मेरा इंसाफ करने वाला खुदा मेरे साथ है। अगर हालत खराब है, कंडीशन ठीक नहीं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल करने वाला, ठीक करने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है। हमारा खुदा हमारे साथ है। और वो कह रहा है कि मेरी आंखें उसे देखेंगी जो मुझ पर खुशी मनाता था, मेरी आंखें उसकी हालत को देखेंगी। लेकिन कब ऐसा होगा? जब मैं पूरे जी जान से खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं, जुड़ी हुई, उस वक्त होगा। उस वक्त मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा ताल्लुक भी खुदा के साथ नहीं है, दुआ के साथ नहीं है, मैं दुआ में नहीं रहता, मेरा ताल्लुक खुदा के कलाम के साथ नहीं है। ऐसों के लिए ये बातें नहीं, हाँ, उनके लिए है जो खुदा पर उम्मीद रखते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े हुए। अगर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ नहीं तो शायद ये बातें फिर हमारे लिए नहीं, क्योंकि कुछ बातें एज अ चर्च हमारे लिए बड़ी अफसुर्दा है। और अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में खुदा का कलाम है और वो पढ़ा नहीं जाता। मैं अक्सर कहता हूं, वो पढ़ा नहीं जाता।
اور خدا کے ساتھ تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں ہم؟ اس کے تھرو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف انسان، اور بیچ میں خدا کا کلام جو میں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر بیچ میں خدا کا کلام نہیں ہے تو خدا اور انسان کا کوئی لنک نہیں ہے۔ شاید ہم پریئر نہیں کرتے، ہم کلام کو نہیں پڑھتے، شاید ہم محض سنڈے والے مسیحی ہیں، سنڈے کو چرچ ہم نے جانا ہے تو ہم بائبلز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پورا ویک ہمیں شاید نہیں پتا ہوتا کہ بائبل کہاں ہے، لیکن جب چرچ آنا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بائبل ہم نے کہاں رکھی، یہاں رکھی، وہاں رکھی۔ اس طرح خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے؟ نو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں بیچ میں ایک طرف خدا ہے، ایک طرف انسان ہے، اور بیچ میں خدا کا کلام ہے، اور جو بیچ میں درمیانی ہے وہ ریڑھ ہے۔ درمیانی یسوع درمیانی ہے، اس کا رول چھوٹا ہے، اس کا رول سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح یہ کلام درمیان میں ہے جو خدا اور انسان کو جوڑتا ہے۔ اگر درمیان میں سے ہم اسے ہٹا دیں تو there's no link، وہاں پھر کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں خدا میں مضبوط بنوں، اور مضبوط میں ایسے ہی ہو سکتا ہوں خدا کے کلام کے تھرو۔ یہی مجھے قوت دیتا ہے۔ کہاں سے میں نے یہ باتیں پڑھی ہیں جو آج کی باتیں پڑھی ہیں؟ کتوں پڑھی ہیں؟ کلام میں سے۔ میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سے تو باتیں نہیں کر دی، میں کر نہیں سکتا۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ، اور یہیں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تعلق مضبوط کرنا ہے تو یہ ذریعہ ہے جو خدا کا کلام ہے، جس میں سے ہمیں تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، جس میں سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ملتی ہیں۔ اور اگر انہوں نہیں پڑھنا تو پھر کچھ نہیں۔ اگر ہم اسے نہیں پڑھتے تو پھر تعلق بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم پریئر نہیں کرتے، دعا کی بھی بڑی تشریحات کی جاتی ہے، باتیں کرنا ہے، خدا کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر ہم خدا سے امید بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی نہ صرف ان لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو، بلکہ اس دور کے سب لوگوں کو بھی امید دلاتا ہے کہ اگر پریشانی ہے تو ڈونٹ وری، خدا ہے، طریقی ہے تو نور بھی ہے، اگر دشمن ہے تو دوست بھی ہے، and that is our God، جو دوست ہے، اور وہ دھوکہ دینے والا دوست نہیں ہے۔ He is not a cheat، وہ وفادار دوست ہے، وہ اٹھانے، سنبھالنے، نور میں لانے اور بحال کرنے والا دوست ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ have faith، ہاں have faith in him، اس دوست پر، اس خدا پر اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے، وہ چینج کر سکتا ہے، وہ طریقے کی حالت سے روشنی میں لے کر آ سکتا ہے، وہ بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ He can do everything، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ Praise God، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے مختصر طور پر دعا کریں گے، خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور بہن شمع سے میری درخواست ہے کہ وہ مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے دعا میں رہنمائی کرنے والی